یعنی ہمارے پاس 19 اضلاع ایسے ہیں، بھاول نگر ہے، اس میں میاں والی ہے، لودرا ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں ایک کیس بھی آج سامنے نہیں آیا۔ اللہ کی ایک بہت بڑا احسان اور ہمارے پہ مہربانی ہے کہ جس طریقے سے کرونا کی وبا ساری قوم نے مل کے اس کے خلاف ایک جنگ کی ہے، اس کی شاید کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ اور جب قوم کھڑی ہو جائے اور قوم محنت کرنی شروع کر دے تو اللہ کی خاص مہربانی ان قوموں پہ ہوتی ہے۔ تو میں اپنے سارے میرے ساتھ عثمان، عمر، اخلاق صاحب سب جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان سب کی محنتوں اور کاوشوں سے شکر ہے خدا کا کہ سیالکوٹ کے حالات کرونا کے بھی بہتر ہوئے۔ آج آپ کے پاس ایک ایسی فیسلٹی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک چاہیے ہوتی ہے فار وائرل انفیکشنز، وہ الحمدللہ آج آپ کے اپنے شہر میں ہے۔ آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کسی پر ڈپینڈنسی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری جو اچھی خبر میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا PC1 جو ہے وہ ہمارا ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اگلے 1 مہینہ سوا مہینے کے اندر ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ یہاں کر رہے ہیں، اور یہ 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ یہ 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ آلریڈی اس کے پیسے فرسٹ فیز کے ہم نے دے دیے ہیں، اور اس کی ساری تیاری انشاءاللہ، اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ بریکنگ کا کام انشاءاللہ اگلے سوا مہینے میں ہم شروع کر دیں گے۔ تو یہ سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ خان صاحب، عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب کا فوکس جو ہے وہ صحت، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ولنریبل بندہ ہے سوسائٹی کا، وہ ایک ماں اور بچہ، جس کے بارے میں خان صاحب نے پہلے دن ہی یہ کہی تھی اپنی تقریر میں کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں دیں گے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پنجاب کے اندر انشاءاللہ اس سال کے اندر 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعمیر شروع ہوگی۔ لاہور کے اندر اور میاں والی میں آلریڈی شروع ہو چکی، باقی 5 کی انشاءاللہ اس سال میں شروع ہوگی، جس میں ایک بہت بڑا حصہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا ڈال رہی ہے۔ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی سپورٹ آ رہی ہے، اور یہ ہسپتال ان علاقوں میں بن رہے ہیں جن کی طرف آج تک کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، جس میں راجن پور ہے، جس کے اندر بھاول نگر ہے، لیا ہے، اٹک ہے، میاں والی ہے، سیالکوٹ ہے۔ یہ وہ شہر تھے جس کی طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں تھا، اور بہت ضروری تھا کہ ان علاقوں کے اندر ہم اپنے نئے ہسپتال بنائیں جو ماں اور بچے کو اچھی سے اچھی سہولت، انٹرنیشنل لیول کی سہولت دیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر تو یہ کہ خود ہی ماشاءاللہ سیالکوٹ والے اتنے سیلف سفیشینٹ ہیں آکسیجن فلو بیڈ بھی کہ انہوں نے آکسیجن فلو بیڈز بھی اپنے تیار کر لیے ہیں۔ اور کتنا آپ کا بیڈڈ ہسپتال ہے وہ آکسیجن فلو والا؟ 110 بیڈڈ ٹارگیٹ ہے۔ اور یہ بہت، یہ میرا خیال ہے جی، جب آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ مزید سپورٹ کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے خان صاحب نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی اور عثمان بزدار صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پہلے اب اگر ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے تو سیالکوٹ کے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی کریں گے۔ تھینک یو میم۔ اور آپ جی ایک تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خاص وقت نکال کے مصروف وقت میں سے آپ آئی ہیں سیالکوٹ۔ ہم سب سیالکوٹ کے عظیم لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سنز آف سیالکوٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی حکومتیں جو 35 سال پنجاب میں انہوں نے حکومت کی اور وہ صحت کے دعوے دار تھے کہ ہم نے صحت پہ کام کیا، سیالکوٹ میں ایک بھی وینٹیلیٹر بیڈ نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک وینٹیلیٹر بیڈ بھی نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے۔ الحمدللہ آج سیالکوٹ علامہ اقبال ہاسپٹل میں 48 وینٹیلیٹرز ہیں، 48۔ یہ کریڈٹ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب 57 سنز آف سیالکوٹ کے ملا کے جو انہوں نے ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا، ہمیں 57 وینٹیلیٹرز بیڈ ہیں۔ یہ بھی کریڈٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیتا ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیتا ہوں، عثمان بزدار صاحب کو دیتا ہوں، جن کی خاص توجہ تھی سیالکوٹ کے لیے۔ NDMA کے ہمارے چیئرمین
जनरल अफजल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें वेंटिलेटर्स दिए। इसी तरह डॉक्टर साहिबा इस हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन फ़्लो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सन्स ऑफ सियालकोट ने मिलकर हमने हॉस्पिटल को सेंट्रलाइज ऑक्सीजन फ़्लो का निज़ाम दिया, जिस पे हम 200 हाई फ़्लो ऑक्सीजन बेड्स का माशाल्लाह आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें से 110 का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, चंद हफ्ते कबल यूनिवर्सिटी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 1 अरब 38 करोड़ रुपए दिए हैं सियालकोट की यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि उसको भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा सके। इसी बेड की ज़रूरत थी। BSL लैब कैंप करने पर मैं सन्स ऑफ सियालकोट का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी बुनियादी वजह इस लैब को शुरू करने की ये थी कि आम आदमी के ऊपर टेस्टिंग की कॉस्ट का बोझ ना आए। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बाई टेस्ट हो रहे थे, और इंशाल्लाह ताला सियालकोट के जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं, ये टेस्टिंग लैब इंशाल्लाह ताला उन्हें सर्व करेगी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपने पूछा? डॉक्टर साहब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपकी जो डॉक्टर साहब हैं मिर्ज़ा साहब और तानिया साहबा की रेजिग्नेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है, देखिए जहाँ तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, ये तो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया होता है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने ख़बर दी, आपको पता है कि पिछले दिनों इतराज़ात इस बात पे उतरे कि ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद ये इतराज़ात निकले कि अनइलेक्टेड लोग हैं। उन्होंने थिंकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर ना पड़े, और क्योंकि इस गवर्नमेंट के वो हमदर्द हैं, अगर वो गवर्नमेंट के हमदर्द ना होते तो कभी ना कदम उठाते और आते और खड़े होते। तो उन्होंने गवर्नमेंट के सोच में कि गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े, दे रिज़ाइंड। तो मेरा ख्याल है बाकी उनकी रेजिग्नेशन की वजह तो वो इंडिया से अद्वियात जो इंपोर्ट की है वो एक वजह नहीं है इसमें? नहीं जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये किसी किस्म का कोई हमारे पास ऐसी बात नहीं है जो खुदा ना खास्ता हम उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इल्ज़ाम लगाएं। मेरा ख्याल है जितना अरसा वो रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सारे सूबों के लिए, हर तरीके से मेहनत की है। हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। देखें ना, ये एक डिसीजंस होती हैं जो बंदों की पर्सनल डिसीजंस होती हैं। मेरे लिए उन पर कमेंट करना जो है वो ज़रा मुश्किल है। जी जी। बुखारी साहब का भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरा खबरें चल रही हैं कि जुल्फी बुखारी और रज़ाक दाऊद के हवाले से चाइना के कुछ कंसर्न हैं, ख़ास तौर पर ग्वादर के हवाले से और सीपैक के हवाले से। मैं असल में जी मैं एक अदना सा मिनिस्टर हूँ पंजाब का, और मेरे लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, मेरे लिए उन पे कमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपने बातें की हम पता ज़रूर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तो जो मैं जवाब देने आई हूँ वो जो सेहत की सहूलतें हैं जो इस वक्त पंजाब में हमने बेहतरी लाए हैं, या अगर आपका ख्याल है कि कोई कमी रह गई है, उनका जवाब देंगे। एक और बात भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये वो हुकूमत है जिसने आते साल एक बहुत बड़ा क्लेम किया जाता था कि जी हमने सब कुछ किया है, लेकिन आप हैरान हो गए कि जब हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की और मुझे ये ज़िम्मेवारी मिली, तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ थी वो ये थी कि 50% डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीटें खाली पड़ी हुई थी। आप मुझे खुद बताइए, आपको ये सामना रोज़ाना सियालकोट में भी करना पड़ता है कि आपके डॉक्टर्स जो हैं वो नाकाफ़ी थे। हमारे आने के बाद हमने 28,000 नए मुलाजमीन रखे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर तकरीबन 6,000 नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पहली दफ़ा मेल नर्सेज रखे गए, पहली दफ़ा फार्मासिस्ट जो हैं उनको जगह मिली। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आते सार हमने एक काम किया कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें हमने आके बढ़ाई ताकि हमारे डॉक्टर्स मेहनत से काम करें और उनको रोज़ माश की फ़िक्र ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो आज अगर पंजाब बहुत बेहतर हालात में खड़ा है इस पेंडेमिक में, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो जो खाली असामियाँ थी उनमें क्योंकि डॉक्टर्स आ गए, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको पता है कि परफॉर्मेंस बढ़ गई। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान साहब का कहना था कि और उस्मान बुज़दार साहब का कि हमने गरीब आदमी के लिए सहूलत देनी। आपको पता है सेहत इंसाफ कार्ड इस वक्त तक हमने 70 लाख कार्ड्स का कमिटमेंट की हुई है, अपनी 72 लाख कार्ड्स की विद दी पीपल ऑफ पंजाब।
50 लाख कार्ड लोगों को मिल चुके हैं। इस वक्त प्रोसेस कोविड की वजह से 3-4 महीने डिले हुआ। ये 72 लाख इनकी पेमेंट हो चुकी है। हर बंदे को इंशाल्लाह जब 72 लाख लोगों को कार्ड मिलेगा तो ये 72 लाख फैमिलीज़ हैं। इसका मतलब है 2.5 से 3 करोड़ लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। जी डॉक्टर साहब, बलाशुबा हुकूमत के बड़े अच्छे इक़दाम की वजह से कोरोना जो है ना आज ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। बस ये बता दें कि जहाँ शहरी ने इसका हैमकदम किया है, कुछ ताजर बरादरी चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा हुआ है उस वजह से वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में कोरोना से महफूज रहने के लिए भी आपने कोई हिकमत किया? देखिए जी, अहम चीज़ है कि इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल अल्लाह ताला का है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जब कोई कौम मेहनत करना शुरू करती है किसी तरफ तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। आज अगर कोविड में कमी आई है तो ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है पाकिस्तान पे, और हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िक्र आपने किया लॉकडाउन का, मैं सिर्फ ज़िक्र बताना ये चाहती हूँ। पिछली दफ़ा ईद के मौके के ऊपर हमें इतना बड़ा नंबर इन्फेक्टेड पेशेंट्स का आया सामने क्योंकि लोगों ने SOPs प्रैक्टिस नहीं किए। इस मर्तबा जब हमने मंडियाँ सब मार्केट्स खोली हुई थी, आप लोगों के सामने खुद आप लोग हमें शिकायतें भेजते थे कि जी SOPs नहीं प्रैक्टिस हो रहे। SOPs का मसला है। ये लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा कि ये एक ऐसा मौका होता है जहां लोग बग़ैर सुने हुए इस तरह का वो इकट्ठ हो जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम खोलेंगे हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म का काम लोगों का खुल जाए। तो मेरा ख्याल है ताजर बिरादरी ने जहाँ इतना अरसा सब्र किया है, मेरी उनसे इल्तिजा है और इल्तमास है कि 5-6 दिन की और बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब के हालात बेहतर हो रहे हैं। सारी मार्केटें खुलेंगी, सारी मंडियाँ खुलेंगी, रिटेल शॉप्स खुलेंगी, हालात ज़रूर बेहतर होंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आज की बात हो रही है, कोई शक नहीं, आपने डाल और साना सियालकोट की जानिब से ज़बरदस्त सियालकोट में डिलीवर किया गया। आपने कहा मुख्तलिफ शोबाजात में डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई गई, लेकिन सियालकोट के ये 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर एक भी किलो प्रॉफिस डॉक्टर नहीं है। उसके हवाले से हुकूमत पंजाब को तरकीज़ तो दी गई लेकिन उस पर अमल रहा। दूसरा मेरा छोटा सा सवाल है, दिल्ली की बात की जा रही है। इस वक्त आप देखिए जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं वो माफिया उल्टा मजीद तगड़ा होकर सामने आ रहा है। शहर में चीनी गायब है, आटा गायब है, 130 रुपये चीनी फरोख्त हो रही है, जबकि आटे का थैला जो है वो 1300 रुपये का 20 किलो का थैला पॉइंट है। लेकिन आप देखें सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ बाहर हो रहे हैं। इतना लंबा सवाल की थी ना, याद करना भी टाइम लगता है। अच्छा, नंबर 1 फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी की पोजीशंस जो हैं वो बाकायदा एडवर्टाइज होती हैं। मसला ये है जिसको नौकरी मिल जाती है वो तो खुश रहता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता वो नाराज़ होता है। अब मकसद ये है, पंजाब की हुकूमत ने हर बंदे को तो नहीं एम्प्लॉय करना, एक कम्पेटिटिव प्रोसेस है। पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंसमेंट्स होती हैं, लोगों को कंपटीशन में जाना चाहिए। जहाँ तक आटे की, चीनी की कीमत है वो आपने सही इसकी निशानदेही की है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया है। ऑलरेडी कमेटीज़ बनाई गई हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये प्राइसेस भी कंट्रोल हों और गरीब आदमी की पहुंच में हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमरा मुआवन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार सियालकोट में मौजूद थे। उन्होंने BSL लेवल 3 लैब का इफ्तिताह किया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आज सियालकोट उन शहरों में शामिल हो गया है जहां कोरोना केसेस की तादाद में बहुत कमी आ रही है और सियालकोट में